this beautifully quoted line, that is, don't be patriotic for one day, be patriotic from day one. Jai Hind and Namaste. I, Devanshi, welcome you all on this auspicious day. What is Independence Day? What is Independence Day to you? While I was schooling, it was just a normal Sunday. It was just a normal Sunday with me sitting around with my family, having a brunch, watching some patriotic movies. पर कई परिवारों ने अपनी बेटियों को और बेटों को खोया है। उनके लिए ये बहुत ही गर्व का દિવસ છે। આજ નોજવાનોની શહીદીને સલામ કરતા આ આઝાદીને કાયમ રાખવાનો દૃઢ સંકલ્પ સાથે આજનો દિવસ આપણે મનાવીએ છીએ। Happy 74th Independence Day to one and all. On this auspicious day, Captain JJ Academy, Gujarat's first and only fully fledged armed force selection and training academy, has organized an elocution competition for the students across Gujarat, representing their respective schools, colleges and universities. The students were categorized in 3 basic categories for the jury. The first category involved the students studying from standard 5th to standard 8th. The second consequently involved students studying from standard 9th to standard 12th. And the last involved the students studying in colleges and universities. The students were juried on the basis of the content they perform, the expression and their delivery, the pronunciation and the flow, and what message they pass to the society. Any competition is incomplete without the presence of our honorable guests. તો આજે આપણી સાથે જોડાયેલ છે એર કમોડર કેદાર ઠાકર સર, કર્નલ વિનોદ ફળનીકર સર, લેફ્ટનન્ટ કર્નલ BZ શર્મા સર અને સાર્જન્ટ લલિત કુમાર રાવલ સર. We all welcome you, sir. કેપ્ટન JJ એકેડમી દ્વારા યોજાયેલ આ ઇન્ડિપેન્ડન્સ ઇલોક્યુશન કોમ્પિટિશનમાં બધી જ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓનો અમને ખૂબ જ સારો સપોર્ટ રહ્યો છે. આ સંસ્થાઓના ટ્રસ્ટીઝ, પ્રિન્સિપલ્સ, મેનેજમેન્ટ ટીમ, શિક્ષકો, વાલીઓ અને વિદ્યાર્થીઓને પણ હું આવકારું છું. इसी के साथ आइए सुनते हैं हमारे पहले अतिथि एयर कमोडर केदार ठाकर सर का संदेश। एयर कोमोडोर केदार ठाकर सर ने 35 सालों तक भारतीय वायुसेना में सर्व किया है। इस कार्यकाल के दौरान उन्होंने हर प्रकार के एयर ऑपरेशन एवं एक्सरसाइज में भाग लिया है। एयर कोमोडोर केदार सर ने संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना के अंतर्गत कोंगो, अफ्रीका में भी हिस्सा लिया है। उन्होंने भारतीय वायुसेना के डेलीगेशन का हिस्सा बनकर वर्ष 2004 में चीन का प्रवास किया है। SC, MSc, MPhil पदवियों के धारक केदार सर ने प्रतिष्ठित डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज और कॉलेज ऑफ एयर वॉरफेयर से डिग्री भी ली है। वर्तमान में वे गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबर है। कैप्टन JJ एकेडमी ना प्रणेता कैप्टन जयदेव जोशी, जज कमिटी ना बधा सभ्यों, बधा जजीस अने सौथी वाला गुजरात अने गुजरातनी बहारथी आ वक्तृत्व स्पर्धा इलोक्यूशन कॉम्पिटिशन में भाग लईने पोताना विचारो रजू करता वाला मित्रों, युवानों, सौ प्रथम तो कैप्टन जयदेव जोशीनो हूँ खूब आभार मानीश के आटला बधा युवानों साथे 2 मिनिट गाळवानो, थोड़ी चर्चा करवानो एमणे मने एक सुंदर मोको आप्यो छे। कैप्टन जयदेव जोशीનું આ એક જે ઇનિશિયેટિવ છે એ બહુ અનેરું છે। કેપ્ટન JJ એકેડેમી શરૂ કરવી એ તો એક બહુ જ મોટું પગલું એમણે ભર્યું છે। યુવાનોને ખાસ ધ્યાનમાં રાખીને યુવાનોના આગળના ભવિષ્ય માટે થઈને એક બહુ જ સરસ કદમ એમણે ઉઠાવ્યું છે। અને એથી પણ વધારે સરસ તો એક આ યુનિક
કોમ્પિટિશન જે એમણે શરૂ કરી છે, જ્યારે આખો દેશ અત્યારે કોરોનાથી ત્રાહી ત્રાહી પોકારી રહ્યો છે, એ વચ્ચે હિંમત હાર્યા વગર એક નવો જ ઇનિશિયેટિવ લઈ અને ઓનલાઈન ઇલોક્યુશન કોમ્પિટિશનનું જે એમણે ઓર્ગેનાઇઝ કર્યું છે એ ખરેખર ધન્યવાદને પ્રાપ્ત છે. અને મારા એમને અને તમે બધા જે ભાગીદાર છો આ આખી સ્પર્ધામાં, એ બધાને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. આ એક બહુ સરસ પ્લેટફોર્મ એમણે આપ્યું છે કે તમે તમારા વિચારો બધા સાથે પહોંચાડી શકો. એ માટે આજે યુવાન છે એને મનમાં ઘણા વિચારો આવતા હોય. ઘણી વખત એને મનમાં થતું હોય કે કેમ આમ થાય છે અને કેમ આમ નથી થતું, શું કરવું જોઈએ. એના પણ દેશદાજ ખૂબ જ હોય છે, પણ એ રજૂ કરવા માટેનું એને પ્લેટફોર્મ નથી મળતું. તો આજે કેપ્ટન જે એકેડેમીએ જે આપ લોકોને પ્લેટફોર્મ આપ્યું છે એ માટે ખૂબ જ પ્રશંસનીય કામ કર્યું છે, અને એ માટે ફરી એક વખત એમને અભિનંદન આપું છું. એમનું એક મુખ્ય ધ્યેય એ છે કે યુવાનો જીવનમાં આગળ વધે, સારું કામ કરે અને દેશની ફૌજમાં, લશ્કરમાં જોડાય એ તરફ એમને દિશા સૂચન કરે, એમને હિંમત આપે અને એમને ગાઈડ કરે. હું ગયા વર્ષે ઇન્ડિયન એરફોર્સ એટલે કે ભારતીય વાયુસેનામાં લગભગ 35 વર્ષની સેવા આપીને નિવૃત્ત થયો છું. અને અત્યારે નિવૃત્ત તો નથી જ, અહીં ગાંધીનગરની ગુજરાત ફોરેન્સિક સાયન્સ યુનિવર્સિટીએ મને સિનિયર ફેકલ્ટી તરીકે નિમ્યો છે અને હોમલેન્ડ સિક્યોરિટીનો ડિપાર્ટમેન્ટ મને સોંપ્યું છે, એટલે હું કામ કરું જ છું. ફૌજી જે હોય એ કોઈ વખત નિવૃત્ત ન થાય, એને એક જાતનો જીવવાની રીત જ એવી થઈ ગઈ હોય કે એને ઘરે બેસવું કે છાપા વાંચીને કે ટીવી જોઈને સમય પસાર કરવો ન ગમે. અને હું પણ એ જ રીતે હજી પણ કાર્યરત છું. બધા કહે છે કે ફૌજમાં જવું જોઈએ, ફૌજ જોડાવવી જોઈએ. શું કામ ફૌજમાં જોડાવવું જોઈએ? શું લાગે છે તમને? આપણે એમ વિચારીએ કે જીવનમાં આપણે શું હોવું જોઈએ. આપણને આ માનવ જીવ મળ્યો છે એટલે આપણે તો જીવી જ જવાના છીએ કોઈ પણ રીતે. લાખો કરોડો વર્ષોથી માણસો જન્મ લે છે, જીવે છે, મરી જાય છે. આપણું પણ એ જ થવાનું છે, એમાં કંઈ ફેર નથી પડવાનો. પણ જીવન આપણે કેવું જીવવું જોઈએ એ આપણે નક્કી કરવાનું છે. તો જીવનમાં શું જરૂરી હોય છે? સૌથી પહેલાં તો આપણે સુખી જીવન હોવું જોઈએ, બરાબર ને? સારો પગાર મળવો જોઈએ આપણને, ઘરની દેખરેખ, ઘરના વડીલો અને છોકરાઓની સારી દેખરેખ થાય એ માટે સારું સવલતો અને આપણને પગાર મળવો જોઈએ, એ જરૂરી છે. માની લઈએ વાતને આપણે, એ જરૂરી છે જીવનમાં. એટલે એક તો એ હોવું જોઈએ. બીજું, આ જ સરસ પગાર અને સવલતોની સાથે જો આપણે કંઈક સમાજ માટે અને દેશ માટે જો કંઈક કરી શકીએ તો કેટલું ઉત્તમ કહેવાય. ફૌજ તમને એ મોકો આપે છે. તમે દેશ અને સમાજ બંનેની સેવા કરવા જિંદગીભર તમે એની માટે સેવા કરી શકો છો. આ સાથે તમને સન્માન આપે છે. તમે જ્યાં પણ જશો તમે કહેશો કે હું ઇન્ડિયન આર્મીમાં છું, કે હું નેવીમાં સેઇલર છું, કે હું લેફ્ટનન્ટ કમાન્ડર છું, કે હું એરફોર્સમાં સાર્જન્ટ છું, કે હું એરફોર્સમાં વિંગ કમાન્ડર છું. પછી ભાઈ સાહેબ તમે જોઈ લ્યો શું તમને કઈ નજરથી લોકો તમને જોવે છે. તમારે બીજી કંઈ જ ઓળખાણ આપવાની જરૂર પડતી નથી. એ પછી જીવનભર એ સન્માન તમને દેશ આપે છે. તો એક એવી કોઈ સેવા આપણને કરવાનો જો મોકો મળે કે જેમાં આપણું જીવન પણ સુધરી જાય, બધી સવલતો પણ મળે, આપણને સન્માન પણ મળે, અને સૌથી વધુ એક જીવન જીવવાની રીત આપણને શીખવવામાં આવે છે. કોઈ પણ ફૌજી હોય એ ક્યાંય અટકવાનો નથી. એટલા માટે નહીં કે એનું મનની શક્તિ એટલી તીવ્ર છે, એટલા માટે, ફક્ત એટલા માટે નહીં, પણ એને ટ્રેનિંગ એવી મળે છે, એના અનુભવો એવા મળે છે. દેશ દુનિયામાં બધે ફરે છે, અલગ અલગ જાતની સ્થિતિની સાથે નીવડે છે, અને એના લીધે એ એવો તૈયાર થાય છે માણસ કે જીવનમાં ક્યાંય પાછો ન પડે, એને કોઈ તકલીફ ન આવે. કોઈ પ્રોબ્લેમ આવે તો પ્રોબ્લેમથી પાછો નહીં હટે. પ્રોબ્લેમ કેમ સોલ્વ કરવો, એનો રસ્તો કેમ કાઢવો, એ તરફ જ એનું
મગજ ચાલશે અને એ તરફ જ એ કાર્ય કરશે. આ જે વસ્તુ છે ને એ ખાલી તમને ફોજ આપી શકશે, બીજું કોઈ નહીં આપી શકે તમને. એટલે ફોજથી સારી કોઈ વસ્તુ નથી. હા, તમે 5 સ્ટાર લાઈફ તમે ઈચ્છતા હો કે તમે મર્સિડીઝમાં ફરો અને તમે મુંબઈમાં તમે મરીન ડ્રાઈવ ઉપર તમારો ફ્લેટ હોય ને એવી જો ઈચ્છા હોય તો એ ફોજ એ નહીં કરે. ફોજ તમને સરસ, સુંદર, સ્વચ્છ, સ્વમાનવાળું જીવન આપશે. એ જો તમને માન્ય હોય તો ફોજમાં જોડાવું છે. અને સૌથી મુખ્ય વાત, આ બધા ફાયદાઓ છે એટલે ફોજમાં ન જોડાતા. જો દિલની અંદર ઈચ્છા હોય ને, દિલની અંદર જો તીવ્ર ઈચ્છા હોય કે ના મારે સેવા કરવી છે, ધગશ હોય, દેશદાજ હોય, તો જ જોડાજો. ઇટ ઇઝ નોટ અ જોબ, ઇટ્સ અ સર્વિસ. એટલે જ એને આપણે સર્વિસીસ કહીએ છીએ. ધ ચોઇસ ઇઝ નોટ વેધર યુ વોન્ટ ટુ જોઈન રેલવેઝ or Air Force. The choice is not whether you want to join corporate sector or you want to join army. There is no competition, there is no comparison. ફોજ અલગ જ છે. મેં જે બધી વસ્તુ કહી એ જો તમને મનમાં બેસતી હોય, તમે કન્વિન્સ હો કે ના મારે આ જાતનું જીવન જીવવા હું તૈયાર છું. તકલીફો પણ આવે, હું એમ નથી કહેતો કે તકલીફો ન આવે. ફોજનીમાં તકલીફો આવે, પણ તકલીફને નિવારવા, એનો સામનો કરવાની તમને તૈયારી પણ આપે છે અને સપોર્ટ પણ આપે છે તમને ફોજ. એટલે જો આ બધી તમારી તૈયારી હોય, then there is no job better than the forces in India or anywhere else in the world. That much I can tell you. તમે રિટાયર થી હવે પરદેશ પણ જશો ને અને કહેશો ને કે આઈ એમ અ વેટરન, પછી જો સાહેબ તમને શું રિસ્પોન્સ આપે છે. ચાહે અમેરિકા હોય કે ફિનલેન્ડ હોય કે ઝેકોસ્લોવેકિયા હોય કે ઇંગ્લેન્ડ હોય, ગમે એ દેશમાં તમે જાઓ, once you say you are a retired Air Force, retired Naval or a retired Army person, પછી જો સાહેબ that is what you earn in your life. અને તમારી મહેનતથી તમે મળવાનું છે, તમને એમને એમ નથી મળવાનું. કેમ લાગે છે વાત? બીજી વાત મારે કરવી છે આત્મનિર્ભર ભારતની, જે બહુ મોટી થીમ જે એકેડેમીએ શરૂ કરી છે. દેશની રક્ષા માટે તો આપણે આત્મનિર્ભર છીએ જ. આપણે આત્મનિર્ભર છીએ. જે આપણા એરમેન છે, જે આપણા જવાનો છે, જે આપણા નેવીના સેલર્સ છે, જે ઓફિસરો છે, એ બધા આત્મનિર્ભર છે. કાલે લડાઈ થાય તો પાકિસ્તાનની જેમ આપણે બીજા કોઈ દેશની ના જવાનોને કે એના પાયલટ્સને બોલાવવા નથી પડતા. પાકિસ્તાન એમ કરે છે. સાઉદી અરેબિયાના પાયલટ્સ આવીને ફ્લાય કરે છે એના માટે. ચાઇનાના પાયલટ્સ આવીને ફ્લાય કરે છે. આપણે એવું નથી. આપણે આત્મનિર્ભર છીએ. આપણે આત્મનિર્ભર શેમાં નથી? આપણા જે હથિયારો છે, આપણા ફાઇટર પ્લેનો છે, આપણી સબમરીન્સ છે, આપણા રડાર્સ છે, આપણા મિસાઇલ્સ, એમાં હજી આપણે આત્મનિર્ભર નથી. અને દેશની પરિસ્થિતિ એવી રહી છે કે આપણી પાસે એટલી નાણાં નહોતા કે આપણે એ માટેને કદમ આગળ વધારી શકીએ અને એ માટે આપણે ઇન્ડસ્ટ્રીઓ બનાવી શકીએ, જે પણ કારણો હોય. પણ એમાં હજી આપણે આત્મનિર્ભર નથી. એમાં આપણે આત્મનિર્ભર થવાનું છે. અને એ ઉપરાંત બીજા ઘણા બધા એરિયાઝ એવા છે કે જેમાં હવે સમય આવી ગયો છે કે આપણે કોઈની તરફ હાથ ના આગળ વધારવો પડે. આપણે આપણા પગ ઉપર ઊભા રહીએ અને એ લોકો આપણી પાસે આવે અને હાથ આગળ વધારે. એ સમય આવી ગયો છે આપણે. અને એટલે જ આત્મનિર્ભર થવું બહુ જરૂરી છે હવે. જો તમે ફોજમાં જોડાઓ તો ઉત્તમ છે, પણ કદાચ ન જોડાઈ શકો અથવા જોડાવાની ઈચ્છા ન હોય તો પણ એમ ના માનતા કે તમે દેશ સેવા નથી કરી રહ્યા. આત્મનિર્ભરતા તમારા માટેનું તમારું દરેક કદમ દેશ સેવા જ હશે. એવું નથી કે ખાલી જે ફોજમાં હોય એ જ દેશ સેવા કરે છે. કાલે સવારે તમે કોઈ ઇન્ડસ્ટ્રી શરૂ કરો, સમાજ માટે કામ શરૂ કરો, કંઈ એનજીઓ શરૂ કરો, અથવા કોઈ મોટી કંપનીમાં તમે કાર્યરત રહીને દેશની આગળ વધવા તરફનું તમે કામ કરો, એ પણ દેશ સેવા જ છે. આઈ એમ વેરી શ્યોર યુ ઓલ વિલ વર્ક ટુવર્ડ્સ મેકિંગ ઇન્ડિયા સેલ્ફ રિલાયન્ટ. ભારતને આત્મનિર્ભર બનાવવા તરફ તમે બધા આગળ વધશો. તમે બધાએ ખૂબ સરસ વિચારો રજૂ કર્યા છે અને એ મને ખૂબ હિંમત આપે છે, ખૂબ આશા બંધાઈ છે મારા માટે કે આજના જે યુવાનો છે એ હાથ ઉપર હાથ મૂકીને બેસવાવાળા નથી. એમનામાં ધગશ છે, એમનામાં હિંમત છે, એમનામાં ટેલેન્ટ છે. ખાલી એક પ્લેટફોર્મની એક જરૂર છે, જે પ્લેટફોર્મ કેપ્ટન જે એકેડેમી
તૈયાર કરી રહ્યું છે તમારા માટે. ફરી એકવાર આપ સૌનો આભાર. કેપ્ટન જયદેવ જોશીને હું ઘણા વખતથી ઓળખું છું. એમનામાં જે એક હિંમત છે, દેશ માટે સમાજ માટે કંઈક કરી છૂટવાની જે એમનામાં જે એક ધગશ છે, એનાથી હું પ્રચલિત છું, બહુ પરિચિત છું. એમને મારા ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. કેપ્ટન જે ફાઉન્ડેશન અને કેપ્ટન જે એકેડેમી તેમજ આપ સૌ યુવાનોને મારા તરફથી ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. અને 15મી ઓગસ્ટ આપણા જે ઇન્ડિપેન્ડન્સ ડે છે એ માટેના મારા બેસ્ટ વિશેસ ટુ ઓલ ઓફ યુ ઇન ધ લોંગ યર્સ ટુ કમ. થેન્ક યુ. We cordially thank you, Air Commodore Kedar Thakur sir, for enlightening us with your message. Now let us listen to 1971 war veteran Colonel Vinod Falnikar sir. विनोद फलनिकर सर ने वर्ष 1967 में भारतीय सेना की रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी में कमीशन हुए. उन्होंने 1971 की भारत पाकिस्तान की लड़ाई में भी हिस्सा लिया. कर्नल फर्निकल सर ने एक रेजिमेंट को कमांड करते हुए जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा को सुरक्षा प्रदान की है. उनके रिटायरमेंट के बाद उनसे ट्रेनिंग लेकर आज 180 से ज्यादा युवक युवतियां सेना में अधिकारी है और 21 जितने पुलिस अधिकारी हैं. परिवार की ट्रेडिशन को आगे बढ़ाते हुए उनके बेटे भी सेना में अधिकारी है और उनकी कमांड की हुई 154 मीडियम रेजिमेंट को भी कमांड कर चुके हैं. गुड इवनिंग एवरीबॉडी. नमस्कार एवरीबॉडी. आज के 15 अगस्त के शुभ अवसर पर स्वातंत्र दिवस सेलिब्रेशन में मैं कर्नल विनोद फालनेकर फ्रॉम रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी सबको बधाई देना चाहता हूं. पर्टिकुलरली कैप्टन जयदेव जोशी एंड हिज एंटायर जे एकेडमी फाउंडेशन. आई विश यू ऑल द सक्सेस. गुड लक ऑल्सो. आपने आज बहुत अच्छा काम किया है कि आज के दिन यूथ को आपने आगे बुलाया टू राइट डाउन द एसे इन द वेरियस एज ग्रुप. ये बहुत बड़ी चैलेंज है, बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है और बहुत बड़ा सक्सेस भी है आपके लिए, क्योंकि आज की तारीख सेलिब्रेशन है पर फॉर व्हाट. आज़ादी की लड़ाई 1857 को भी हुई थी, लेकिन इतने दिन 70 ईयर सेलिब्रेशन हम आज़ादी को मिले 47 के बाद. क्या हमने अचीव किया, हमारे बुजुर्ग ने क्या किया. 21 लाख पार्टीशन के टाइम के कुर्बानी हुई सिविलियंस की. मोर देन 14,000 सोल्जर्स किल्ड इन वेरियस एक्शन. कहीं 50,000 के आसपास वुंडेड हुए और 2,335 तो मिसिंग है कहीं भी. तो आज के दिन नॉट ओनली सोल्जर्स बट हमारे सुभाष चंद्र बोस आज़ादी से पहले, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, वीर सावरकर, झांसी की रानी, all these people including my सरदार पटेल एंड बापू गांधी, we should remember them. उनको हम सैल्यूट करते हैं, उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं कि आज उनकी कुर्बानी से हमको आज आज़ादी मिली है. आराम से हम घूम सकते हैं, पढ़ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं. सबका योगदान है. आप लोगों का भी योगदान है, आपके माँ बाप को भी योगदान है, आपके बुजुर्गों का सबका योगदान है. तो इस अवसर पे वी शुड नॉट फॉरगेट द कंट्रीब्यूशन, द सैक्रिफाइस ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर्स ऑल्सो. कई फ्रीडम फाइटर. मैं आप सब बच्चों से प्रार्थना करूँगा, हो सके अंडमान निकोबार जाइए, देख के आइए. आपको रोना आएगा ये देख कर कि हमारे कैसे मार्टिर शहीद हो गए, हमारे हीरो. क्या उन्होंने यातना सहन की देश को आज़ादी दिलाने के लिए, अंग्रेजों से हो या कहीं से भी हो. तो इस वक्त ये जो प्रोजेक्ट इन्होंने स्टार्ट किया हुआ है, मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को हाथ में फ्लैग लिख करके आज़ादी नहीं मनाई जाती. आज़ादी दिल से होनी चाहिए, दिमाग से होनी चाहिए और एक नेशनल स्पिरिट होना चाहिए कि मैं और मेरा देश, और देश हित के अंदर देश को जो तोड़ने वाले हैं उनको पुलिस के सामने लाइए, बेशक कोई भी हो. अब देखो बेंगलोर में क्या हो रहा है या उधर पालघर में क्या हुआ है. ऑल दीज चीज़ें ऐसी है कि वो देश को तोड़ने वाली हैं. ऐसे जयचंद देश में बहुत हैं, उनको आप आइडेंटिफाई कीजिए जो देश के देशद्रोही हैं. इन लोगों को आप एक्सेप्ट मत कीजिए. बुक देम एंड टोल देम द पुलिस. देश हमारा है, हम सबका है. और सबसे पहले महावीर चक्र ब्रिगेडियर उस्मान को मिला. कहीं
परमवीर चक्र भी हमारे मुस्लिम भाइयों को मिला, हमारे क्रिश्चियन भाई को महावीर चक्र मिले हुए, कई लोगों को देश ने कुर्बानी दी हुई, कई स्पोर्ट्समैन देश के लिए अच्छे खेलते हुए, वेदर इट इज इरफान पठान, कोई भी हो, अच्छे अच्छे हमारे बॉलीवुड एक्टर्स भी हैं। तो ये सब देश को इकट्ठा करने के लिए, जोड़ने के लिए है। हम लोग डिफरेंट धर्म के हैं, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, लेकिन जब इकट्ठा होते हैं ऐसा पंच मारेंगे दुश्मन को, उसके दांत। आपने देख लिया अभी गलवान में क्या हुआ, लद्दाख में क्या हुआ, बिना हथियार के हमने लड़ाई लड़ी, बिना हथियार के। जब ऐसे जो हमारे देश के वीर हैं वो आपके लिए कुर्बानी करने के लिए 14,000 फुट, 9,000 फुट, 13,000 फुट कहीं पे भी काम कर रहे हैं, लेट्स नॉट फॉरगेट द कुर्बानी। इनकी कुर्बानी अब मत भूलिए। मैं हर एक माता पिता से प्रार्थना करता हूँ कि जरूर नहीं बंदा फौज में जाए, बहुत अच्छी बात है, फौज में जाए, पैरामिलिट्री फोर्स में जाए, बीएसएफ में जाए, लेकिन अगर नहीं जाता इसका मतलब क्या वो देशद्रोही है? नो, वो देश का वफादार नागरिक बने, ईमानदार नागरिक बने, चाहे आप बैंक ड्यूटी में हो, रेलवे ड्यूटी में हो, कहीं पे भी हो, चाहे वो एयरपोर्ट पे कहीं ड्यूटी हो, अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करो। अरे आप ईमानदारी से काम करोगे, ये पूरे फ्रीडम फाइटर कौन थे हमारे? ईमानदारी थे ना। आज 26,000 लोग सुभाष चंद्र बोस में से उनका कोई नाम पता ही नहीं है, लेकिन कम से कम आदरणीय नरेंद्र मोदी ने उनको आइडेंटिफाई तो किया, रिकॉग्नाइज तो किया उन्होंने भी कुछ किया देश के लिए। सिर्फ एक ही फैमिली के ऊपर मत जाइए आप। मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ, सभी लोगों का कंट्रीब्यूशन उसको ध्यान रखिए और उनको सराहना कीजिए, उनकी फैमिली को इज्जत दीजिए। उन जितने भी बुजुर्ग आदमी हमारे हैं देश के, आप ईमानदारी से, वफादारी से उनके पास जाइए, उनके पास बैठिए, कहानी सुनिए। अरे इतिहास से ही बंदा स्ट्रेंथ मिलती है हमको। जब आपको इतिहास ही नहीं है, राणा प्रताप का इतिहास पता नहीं, आपको सुभाष चंद्र बोस का इतिहास पता नहीं, आपको वीर सावरकर का इतिहास पता नहीं, आपको शिवाजी महाराज का इतिहास पता नहीं, या सरदार पटेल ने जो क्या क्या यातनाएं सहन की। कई लोग ऐसे हैं जो फ्रीडम फाइटर हैं, दो रहे होटल बैंक अपने जेल में रहे, लेकिन बादाम का दूध पिए वो। लेकिन कोई लोग ऐसे उन्होंने कई यातना सहन की, जो आप पोर्ट ब्लेयर में जाइए आपको मालूम पड़ेगा कैसे कैसे इन लोगों ने किया हुआ है। आई पर्सनली फील उनकी आत्मा को शांति के लिए जब हम 15 अगस्त सेलिब्रेट करते हैं तो सबसे पहले श्रद्धांजलि उनको दीजिए। उनके इतिहास के बारे में कई लोग ऐसे अन्य, झांसी की रानी देख लो, कई लोग ऐसे हैं, तात्या टोपे, कई अपने बाल गंगाधर तिलक। तो ये सब आदमी जो ये तीनों पुरुष और स्त्रियों ने जो देश के लिए कुर्बानी की और आज हमारा देश खड़ा हुआ है, मुझे बड़ा गर्व है कि आज इसको रिकग्निशन मिला हुआ है लाल किले से आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब ने। तो ये इनकी कुर्बानी सुभाष चंद्र बोस की याद रखी, हम सब की कुर्बानी आपने याद रखनी चाहिए। मोमेंट यू सी अ सोल्जर यू सैल्यूट अ फ्लैग, यू सैल्यूट अ सोल्जर मीन्स यू सैल्यूट अ फ्लैग। जब तक आप ये करोगे नहीं, ईमानदारी, वफादारी बहुत ज़रूरत है। आज देश को इफेक्टिव लॉ की ज़रूरत है, आज देश को गुड गवर्नेंस की ज़रूरत है, आज देश को इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ज़रूरत है, आज देश को ज़रूरत है मिलिट्रीली माइट, आज देश को ज़रूरत है सोशली एंड कल्चरली वी शुड बी कोहेसिव, एक वन प्लेटफॉर्म पे। चाहे हम कोई किसी धर्म के हो, हम किसी धर्म के हो, हम फौज में हम कभी ये नहीं बोलते सर्वधर्म स्थल होता है, सर्वधर्म स्थल। हम खुद हिंदू होकर मस्जिदों में जाते हैं, हमारे मुस्लिम भाई हमारे साथ यज्ञ करने बैठते हैं। तो ये जब हम फौजी कर सकते हैं तो मेरा देश का हर एक नागरिक क्यों नहीं कर सकता? इसलिए, और ये जब होगा जब आप कि जैसा फौज का जुनून होगा, चाहे आप बैंक में नौकरी कर रहे हैं, चाहे रेलवे में नौकरी, ये जब देश का जुनून जब होगा, कैप्टन जयदेव जोशी जी ने ये जो एकेडमी खोली है, इसके साथ रह करके अच्छे देश के नागरिक बनो। मैं ये काम किया 97 के रिटायर होने के बाद, आज 140 ऑफिसर हैं मेरे गुजरात से, मेरे 20 से 22 बंदे हैं पुलिस में, इंस्पेक्टर पीआई है या डीवाईएसपी है, कुछ भी हो, अच्छा काम, मुझे ये मेरी एक्सपर्टी है, मैंने काम किया उसके अंदर। ठीक है, कई बंदे नहीं बने, मिलिट्री में नहीं गए, लेकिन आज वो देश में बैंक देना बैंक में बंदा बैठा हुआ है, बैंक ऑफ इंडिया में बैठा हुआ है, रेलवे में बैठा हुआ है, अच्छे अच्छे गैजेटेड पोस्ट में मेरे कई बच्चे बैठे हुए हैं, एंड दे आर डूइंग गुड जॉब। एंड वी ऑल, हम 15 अगस्त को इकट्ठा होते हैं सब लोग, मुझे बड़ा अच्छा लगता है 15 अगस्त 26 जनवरी को मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं हम लोग इकट्ठा होते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। यही तो बॉन्ड है इस देश का, यही तो बॉन्ड है। तो इस बॉन्ड को मेंटेन रखिए। 5 fingers आर नॉट सेम बट यूनिटी इन डाइवर्सिटी, डिवाइडेड वी फॉल, यूनाइटेड वी स्टैंड। और ये स्टैंड होना है। अभी देश में संकट आ रहा है, कोरोना का संकट भी आपने बहुत अच्छा काम किया हुआ सब लोगों ने, अब करिए उसके ऊपर काम और इस देश को बचाने की कोशिश की। देखो मुझे याद है
65 वॉर, 71 वॉर में, और 62 वॉर में। तो अभी कल मैंने रात को हकीकत पिक्चर देखी, लेडीज़ ने अपने गहने निकाल के दे दिए देश को। इतने भैया कहाँ गया वो सोना, कहाँ गए हथियार? ये हथियार होने चाहिए। तो आप इसके ऊपर मॉनिटर कीजिए, देखिए कि मेरा देश आगे कैसे बढ़ेगा। सबका कंट्रीब्यूशन, चाहे वो हिंदुस्तान में है चाहे वो बाहर है, हर एक देश का नागरिक इस चीज़ को समझे कि मैं भारतवासी हूँ। आई एम बेसिकली इंडियन। आई एम नॉट सेइंग यू आर हिंदू और मुसलमान हो, आई एम बेसिकली इंडियन। और मैं अगर देशवासी हूँ तो लेट्स वर्क फॉर ए कॉमन कॉज। मैं तो सरकार से प्रार्थना करता हूँ आपके साथ, यूनिफॉर्म सिविल कोड मस्ट कम, वन नेशन वन लॉ, वन नेशन वन लॉ। तो जैसे आर्टिकल 370 में एब्रोगेट किया हुआ है, ट्रिपल तलाक का आ गया हुआ है। कई रूल्स एंड रेगुलेशन सरकार ने क्यों नहीं लाए? पहले क्यों नहीं लाए? फर्स्ट 30 साल तक पहले किसकी सरकार थी, किसकी मेजोरिटी थी? 2/3 से भी ज़्यादा मेजोरिटी थी। तो क्यों नहीं आपने रिजर्वेशन पॉलिसी अमेंड की? क्यों नहीं आपने आर्टिकल 370 अमेंड किया? क्यों नहीं आपने ये राम मंदिर? अरे आपको शर्म करो यार। आज 7 साल के बाद 700 साल अपना देश है, राम की पूजा करते हैं, जय श्री राम बोलते हैं, जय हनुमान बोलते हैं, एंड यू कैन नॉट कंस्ट्रक्ट योर राम मंदिर। और हमारे खुद ही जयचंद देश के ऐसे हैं, दे आर फाइटिंग अगेंस्ट यू। इस विषय पर ध्यान रखिए। यहाँ आप चौकन्ना रहिए, और चौकन्ना जब रहोगे, सिर्फ चौकन्ना से कुछ नहीं होता। यू मस्ट come back and oppose it, and for that you require a physical stamina and physical standard. और physically you are fit, mentally if you are fit, I am sure मेरा देश, हमारे माँ बाप भी सुखी रहेंगे, बच्चे भी सुखी रहेंगे, मोहल्ला भी सुखी रहेगा, सब सुखी रहेगा। इस माध्यम से मैं ऑल द बेस्ट कह रहा हूँ, बेस्ट विशेस टू माई ऑल स्टूडेंट जिन्होंने रिटन एग्जाम अपना ऐसे कॉम्पिटिशन में आ रहे हैं, उन सबको शुभकामनाएं भी दे रहा हूँ, बधाई भी दे रहा हूँ उन्हें एडवांस के अंदर। लेकिन आई एम रियली ग्रेटफुल टू कैप्टन जयदेव जोशी, जो मेरी ब्रांच से, ही इज़ फ्रॉम आर्टिलरी फ्रॉम माई ब्रांच, एंड ही इज़ डूइंग गुड जॉब। आई पर्सनली फील दैट ही शुड कम्युनिकेट, ट्राई एंड सी दैट ऐसे बच्चे तैयार हुए वो देश के अच्छे नागरिक हुए। सबसे पहले इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। अगर आप इंसानियत आपके अंदर है, सभी में है, आई एम श्योर देश, और उसके लिए चाहिए सबसे पहले एजुकेशन। अगर देश पढ़ा लिखा है, कोई गरीबी नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, धीरे धीरे आप ऊपर आओगे तो सब होगा। अब नहीं करोगे तो फिर वो मौलाना है, वो पंडित है, वो गुरुद्वारा वाला है, ये सब लोग अंधश्रद्धा में हमको उल्लू बनाएंगे एंड हमको डिवाइड करेंगे। इसका कोई मतलब नहीं। इसमें देश के नुकसान है, आपका नुकसान है। ये नुकसान को बचाए। अगर देश अच्छा है, इकोनॉमिकली अच्छा है, टेक्निकली वेल डेवलप, पॉलिटिकली वेल स्टेबल, मिलिट्रीली स्ट्रॉन्ग, तो आपकी नेशनल सिक्योरिटी अगर टॉप है, आपको कोई हिला नहीं सकता। यही मैं आपके माध्यम से जयदेव जोशी को कहना चाहता हूँ, सभी बच्चों को, सभी पेरेंट्स को ये बताना चाहता हूँ, डू योर बेस्ट फॉर द कंट्री, डू योर बेस्ट फॉर द कंट्री, लिव इट टू गॉड। कृष्ण मतलब भगवान ने बताया ना, सबूर का फल मीठा होता है, डोंट वेट फॉर दैट। आप अच्छा काम कीजिए। बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट एंड कीप स्माइलिंग। 15 अगस्त इज योर्स, इट्स ए यूथ डे, जिस देश का यूथ तकदीर वाला है, ताकतवर है, वो देश हमेशा तरक्की करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। थैंक यू। Thank you, Colonel Farnikar sir, for your precious words. Here we have a galaxy of armed force veterans. Next, we have Lieutenant Colonel V.Z. Sharma sir sharing his views. लेफ्टिनेंट कर्नल विनोद जेड शर्मा ने 1987 में रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी में कमीशन हुए। उन्होंने अपने कार्यकाल में विभिन्न एरियाज जैसे सिक्किम और हिमाचल के हाई एल्टीट्यूड एरियाज, जम्मू एंड कश्मीर के आतंकवाद ग्रस्त और चाइना बॉर्डर पर सर्व किया है। कर्नल V.Z. शर्मा सर ने गुजरात और मध्य प्रदेश के स्कूल कॉलेज के एनसीसी कैडेट्स को ट्रेन करके दिल्ली की आरडीसी परेड में रिकॉर्ड ब्रेक शानदार परफॉर्मेंस करवाया है। उन्होंने स्टेशन हेडक्वार्टर जामनगर और बंगाल एरिया के कोलकाता में भी सर्व किया है। कर्नल V.Z. शर्मा सर ने मध्य प्रदेश और गुजरात के पूर्व सैनिकों के वेलफेयर के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। जय हिंद। आप सबको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है जब कैप्टन जयदेव जोशी साहब ने मुझे ये बताया कि उन्होंने एक अलग प्रकार का एक कंपटीशन आप सबके लिए डिज़ाइन किया है।
कोरोना पेंडेमिक की महामारी के बीच भी जब एक यूथ को ये प्लेटफॉर्म दिया जाता है, आप सोचिए कि बदलते हुए ज़माने में कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ जे एकेडमी ने हमारे सामने रखी है। मुझे पूरा यकीन है कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए एलोकेशन जिसके टॉपिक है, वी आर लिसनिंग टू द यूथ, आपके आज के विचार, एंड सेलिब्रेटिंग आवर इंडिपेंडेंस डे। बदलते हुए ज़माने और टेक्निक के चलते आज ये ज़रूरत आन पड़ी है कि हम अपने तौर तरीके भी बदलें। कैप्टन जयदेव जोशी साहब को ये मेरा सौभाग्य रहा कि मैं उनके साथ रहा हूँ और पूरा यकीन है वो जो भी काम करते हैं वो तहे दिल से करते हैं। इस तरह से आपके जो इलेक्ट्रिशियन के टॉपिक को जब हम YouTube पे देखेंगे, उससे जब कंपेयर करेंगे एक दूसरों के साथ, क्योंकि ये 3 कैटेगरी में है, 5 से 8 कक्षा के लिए, 9 से 12वीं कक्षा के लिए और कॉलेज लेवल के लिए। मुझे पक्की उम्मीद है कि आप सब लोग अपना दिलो जान लगा करके इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। कैप्टन जयदेव जोशी साहब एक अहम प्रकार के सच्चे दिल से फौजी है और उनको अपने देश के प्रति इतना लगाव है जिसको कि मैं पर्सनली जानता हूँ। आई विश you all the very best, stay safe, take care, and wishing you all a very happy Independence Day. Jai Hind, all the best. Thank you, Lieutenant Colonel V.Z. Sharma, sir. Last but not the least is an air warrior, Sergeant Lalit Kumar Rawal, sir. सार्जेंट ललित कुमार रावल सर भारतीय वायुसेना के एयर वॉरियर हैं। उन्होंने अपने 35 साल जितने कार्यकाल में महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट्स पर सर्व किया है। सार्जेंट ललित कुमार रावल सर नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस के एक्सपर्ट के रोल में सभी टीवी न्यूज़ चैनल्स पर रेगुलरली देखे जा सकते हैं। भारत माता की जय। આજના 15મી ઓગસ્ટના શુભ પ્રસંગે આજે જ્યારે કેપ્ટન જે એકેડેમી આજે જે આયોજન કરી રહી છે યુવાનોને મોટિવેટ કરવા માટે ખૂબ ખૂબ સ્તુત્ય અને અભિનંદનીય પગલું છે। અને એમાંય કેપ્ટન જયદેવ જોશી એ ખૂબ એનર્જેટિક અને વાઇબ્રન્ટ પર્સનાલિટી ધરાવતા રિટાયર્ડ આર્મી ઓફિસર છે। એમના માર્ગદર્શન, એમના એક ચાલક પરિબળના રૂપે એમણે જે શરૂઆત કરી છે ગુજરાતના યુવાનોને એક માર્ગદર્શન આપવાની, તાલીમ આપવાની અને ગુજરાતના યુવાનોને આ ભારતીય સેનામાં જોડાવા માટે એક મોટિવેશનલ ફોર્સ પૂરું પાડવાનું જે આ ભગીરથ કાર્ય હાથ ધર્યું છે, મારા એમને ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ, ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ। આપણા ગુજરાતનો તરવરીયો યુવાન દરેક એક સારી કારકિર્દી ઝંખતો હોય છે અને ઝંખવી જોઈએ અને સ્વપ્નું દરેકનું હોવું પણ જોઈએ। પણ આજના આ મટીરિયલિસ્ટિક યુગમાં જ્યારે લોકો મલ્ટીનેશનલ કંપનીઓના ઝાક જમાળમાં એક પૈસા પાછળ પોતાની ભૂખ સંતોષવા પાસે જ્યારે કારકિર્દીના ઘડતર રૂપે જે પ્રયાસો કરે છે, મારી દ્રષ્ટિએ એમાં થોડું કોમ્પ્રોમાઇઝ કરી અને દરેક યુવાનના અંદર સૂતેલી રાષ્ટ્રભાવના, રાષ્ટ્રપ્રેમ અને રાષ્ટ્રદાજ જાગે, એની આગ જ્વલે અને લોકો એક ગોલ સ્વીકારતા થાય કે ભાઈ મારે મારી ભારત માતાની સેવા માટે જવું છે, મારે આર્મીમાં જવું છે, મારે એરફોર્સમાં જવું છે, મારે નેવીમાં જવું છે। આવી જ્યારે એક કલ્પના કરશે, એવા સ્વપ્ના સેવશે અને એવો સંકલ્પ કરશે ત્યારે 100% અને ફૌજમાં જોડાયા પછીનું
જે આન બાન અને શાન ભરેલું જીવન છે એ તમને પ્રાઇવેટમાં કે મલ્ટીનેશનલ કંપનીઓમાં નહીં મળી શકે. ત્યાંનું જે જીવંત ઇટ્સ એ લાઈફ ફોર્સ. આર્મ ફોર્સિસમાં જોબ એટલે ઇટ્સ એ વેરી લાઈફ ફોર્સ, વેરી વાઇબ્રન્ટ, ચેલેન્જિંગ એટ એવરી સ્ટેપ. અને એ આનંદથી માણવું, સાથે સાથે સન્માન પણ માણવું અને દેશની શાન વધારવી, એવા ભગીરથ કાર્યમાં જોડાવાનો જો સંકલ્પ આપણા આજના ગુજરાતના યુવાનો કરે તો એ ખૂબ ખૂબ સ્તુત્ય ગણાશે. અને કેપ્ટન જયદેવ જોશીને પુનઃ હું એમને અભિનંદન આપું છું અને એમના કાર્ય માટે ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ આપું છું. આજના યુવાનોને જે આ એમણે ટૉપિક આપ્યો છે રાષ્ટ્રભાવના માટેનો, એમાં જે યુવાનો ખૂબ ઉત્તમ અને ઉત્તમથી પણ ઉત્તમ કહી શકું એવા એમના વિચારો રજૂ કર્યા. ખૂબ આનંદદાયક વાત છે. આ રાષ્ટ્રભાવના, આ દેશની દાજની ભાવના દરેક યુવાનમાં જાગે અને દરેક યુવાન મારું રાષ્ટ્ર પ્રથમ અને મારી જાત પછી, એવી જ્યારે ભાવના એમનામાં જાગશે ત્યારે આ રાષ્ટ્ર સુવર્ણકાળમાંથી 100% પગરવ માંડી જ ચૂક્યો હશે એવું મારું માનવું છે. જય હિન્દ. Thank you so much, Sergeant Raval sir. Now I would like to call upon Captain Raghuveer C. Jadeja sir to share his views. कैप्टन रघुवीर सी जाडेजा सर 1978 में द ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट की 12th बटालियन में कमीशन हुए. एक समय पर भारत की चीन के साथ लगी सीमा पर स्थित हजारों सैनिक से बनते एक आर्मी डिवीजन में पोस्टेड मात्र 3 में से एक गुजराती आर्मी ऑफिसर थे. कैप्टन RS जाडेजा सर ने तवांग, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, पुणे और गांधीनगर में सर्व किया है. कैप्टन जाडेजा सर पिछले 20 साल से नेशनल सिक्योरिटी सर्विस नामक कंपनी चला रहे हैं. युवाओं को ट्रेनिंग देने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग नामक इंस्टीट्यूट चला रहे हैं. कैप्टन RS जाडेजा सर कैप्टन JJ एकेडमी, वही एकेडमी जो गुजरात की पहली और एकमात्र आर्म्ड फोर्सेस सिलेक्शन ट्रेनिंग एकेडमी है, और वही माध्यम है से आज ये इलोक्यूशन कंपटीशन हो रही है, उनके आधार स्तंभ है. जय हिंद, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. This actually we are planning to hear something about the Independence Day from our young students. और इससे ये होता है कि स्टूडेंट्स को भी मौका मिले अपनी बात बताने का. बेसिकली हम एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं जहां मिलिट्री, पैरामिलिट्री में ज्वाइन करने के लिए जो कोर्सेज होते हैं वो करते हैं. तो ये एक इंडिपेंडेंस डे के ऊपर मौका था कि स्टूडेंट के क्या विचार हैं वो हम जान सकें और उनको थोड़ा प्रोत्साहन. इसी के लिए ये हमने किया था और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. थैंक यू. Thank you, Captain Jadeja sir, for your valuable words. Here we are, eagerly waiting for this very moment. The results are ready to be declared, and I know all of you are waiting for the results. But before that, the one who has been the brainchild of this competition and is the founder of Captain JJ Academy, Captain Jaydev Joshi sir. I would like Captain Jaydev Joshi sir to enlighten us with his valuable words. जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम. कैप्टन JJ एकेडमी द्वारा आयोजित इस स्वतंत्रता पर्व के सेलिब्रेशन और कैप्टन JJ एकेडमी द्वारा आयोजित संभवतः भारत की पहली ऑनलाइन इंडिपेंडेंस इलोक्यूशन कंपटीशन
स्वातंत्र्य वक्तृत्व स्पर्धा के परिणाम घोषणा कार्यक्रम में मैं कैप्टन जयदेव जोशी आप सबका स्वागत करता हूं। हमारी इस YouTube चैनल के माध्यम से हम आपको आज के दिन की स्वतंत्रता पर्व की ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। आज का यह स्वतंत्रता पर्व हम जिनके बदौलत मना पा रहे हैं वैसे सभी शहीदों को, उनके परिवारों को और उनके साथ काम करके भारत की स्वतंत्रता के लिए सदैव सक्रिय रहने वाले हर भारतवासी को नतमस्तक वंदन और सलाम करते हुए हमें आज का दिन सेलिब्रेट करना चाहिए। साथ ही में आज के दिन यह स्वतंत्रता पर्व इतने ही उत्साह, उल्लास और राष्ट्रीयता के उत्साह और आनंद के साथ हम मना सके आने वाले कई सालों तक, कई सदियों तक उस चीज का दृढ़ निर्धार करना चाहिए। हमने पिछले कुछ दिनों में यह देखा और अनुभव किया कि कोरोना पेंडेमिक के कारण हमारी कई सारी गतिविधियों में रोक सी आ गई है। 15 अगस्त जैसा राष्ट्रीय पर्व अपनी चमक कोरोना वायरस के कारण गंवा दे, ये सहन नहीं हो सकता। और दूसरी बात कि आज हम जब यह स्वतंत्रता पर्व मना रहे हैं और 74वां यह स्वतंत्रता पर्व है, तब हम ये कहते हैं, बड़ी गर्व के साथ ये कहते हैं कि भारत वो देश है जिसके पास अत्यधिक, विश्व में सबसे ज्यादा युवाओं की जनसंख्या है। और यह युवा ही है जो आने वाले कल में भारत को सर्वोत्तम बनाने के अभियान में हमारे राष्ट्र का नेतृत्व करने वाले। तो कैसे इन युवकों को मात्र हम एक जगह इकट्ठा करके हमारे भाषणों से ही ग्रस्त और त्रस्त करते रहें? मेरे ख्याल से समय आ चुका है कि अब आने वाले कल में जो भारत की सुकान लेने वाले हैं अपने हाथ में, वैसे युवाओं को आज ही अभी ये सुकान सौंप दी जाए। वी शुड लिसन टू द यूथ। और इसलिए इन दो कारणों से, कोरोना पेंडेमिक के कारण 15 अगस्त की सेलिब्रेशन की चमक कम न हो और युवाओं से हम सुनना सीखे, युवाओं के नेतृत्व में पूरा राष्ट्र कदम दर कदम मार्च करना शुरू करे, इन दोनों हेतु से हमने इस वक्तृत्व स्पर्धा का आयोजन किया। कैप्टन जे एकेडमी के सारे स्टाफ ने यह निर्णय किया एंड ऑन ए वॉर फुटिंग एक मिशन को अपने जैसे हाथ में लेते हैं और उसके पीछे लग जाते हैं, वैसे पिछले 10-15 दिन में हम इसके पीछे लग गए। हमने गुजरात की लगभग 20 से 25 शैक्षणिक संस्थानों से संपर्क किया, गूगल फॉर्म के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवाया। रजिस्ट्रेशन 3 श्रेणियों में हुआ, कक्षा 5 से 8, 9 से 12 और महाविद्यालयन विद्यार्थी, कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए अत्यधिक रजिस्ट्रेशन हुए। इन रजिस्ट्रेशनों के बाद हमारी टेक्निकल टीम और क्रिएटिव टीम बस तौबा पुकार गई उस हद तक विद्यार्थियों के, युवकों के, युवतियों के वीडियोस हमारे YouTube चैनल पे, हमारे व्हाट्सएप पे, हमारे ईमेल पे, गूगल ड्राइव पे आना शुरू हो गए। हमारे ट्रेनर्स और हमारे इस स्पर्धा के जजेस इन सभी के थ्रू देखते हुए एक यात्रा पे निकले। यात्रा हम आध्यात्म और उस परम ईश्वरीय पदार्थ की खोज में करते हैं। हमारे जजेस और टीम मेंबर्स ने भी राष्ट्रीय पर्व की और भारत माता के चरण कमलों तक पहुंचने की यह यात्रा की। आज 15 अगस्त को इस कार्यक्रम के परिणामों के साथ हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तब मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से
हमारे साथ जुड़े हुए पूर्व सैनिक अधिकारी जिन्होंने अपनी लीडरशिप, अपनी बहादुरी, अपने शौर्य और अपनी टीम मैनेजमेंट का लोहा आर्मी में, एयरफोर्स में मनवाया है, वैसे सभी वेटरन्स का भी आभारी हूं और उनको सलाम करते हुए करबद्ध हाथों से नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं। इस स्पर्धा को कामयाब बनाने में जिन शैक्षणिक संस्थानों से हमें मदद मिली, उन सभी संस्थानों के ट्रस्टीगण, मैनेजमेंट, एकेडमिक स्टाफ और इन संस्थानों के हृदय सम विद्यार्थी और उन विद्यार्थियों के माता पिता का भी मैं अपने हाथ जोड़ के आभार और वंदना करता हूं। तो विद्यार्थियों, आज और कोई बात ना करते हुए कैप्टन जेजे एकेडमी क्या करती है और क्यों हमने ये कंपटीशन कराई और जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उन परिणामों की तरफ बढ़ेंगे। पिछले 7-8 साल से कैप्टन जेजे एकेडमी मात्र एक ध्येय, लीडरशिप हैंडक्राफ्टेड, देश के अलग अलग हर वॉक ऑफ लाइफ में हम लीडर्स का निर्माण करें, नेतृत्व करने वाले युवाओं का निर्माण करें, उस हेतु के साथ अग्रसर है। और ये युवा कैसे होंगे, इसमें भी कैप्टन जेजे एकेडमी का एक त्रिसूत्रीय मंत्र है। ऐसे युवान जो फिजिकली फिट हो, शारीरिक तौर पे सक्षम हो, मेंटली अलर्ट हो, मानसिक और बौद्धिक तौर पर एकदम सतर्क हो और मॉरली अपराइट हो, सांस्कारिक तौर पे जो बड़े ही उन्नत हो, ऐसे युवाओं का निर्माण करना है। और ये करते करते हम स्वतः ऐसे युवक युवतियों को ट्रेन कर पाएंगे जो, और कैसे होंगे ये युवक, ऐसे युवक युवतियों का निर्माण करने के त्रिसूत्रीय मंत्र के साथ कैप्टन जेजे एकेडमी चल रही है, जो है फिजिकली फिट, शारीरिक तौर पर सक्षम, मेंटली अलर्ट, मानसिक और बौद्धिक तौर पर एकदम सतर्क और मॉरली अपराइट, सांस्कारिक तौर पर एकदम उत्तम प्रतिभा, उन्नत प्रतिभा रखने वाले युवक युवतियों का निर्माण करना। ऐसे युवाओं का जब हम निर्माण करेंगे, तब स्वतः यह युवक युवतियां भारतीय सशस्त्र सेना बल की वर्दी पहन के मातृभूमि के रक्षण के लिए कोई भी दिया हुआ काम करने को तैयार होंगे, तत्पर होंगे। कैप्टन जेजे एकेडमी गुजरात की एकमात्र और पहली ऐसी आर्म्ड फोर्सेस सिलेक्शन ट्रेनिंग एकेडमी है जो एक फुल फ्लेज्ड एकेडमी है। आज हमारे बीच जुड़े हुए और हमेशा से कैप्टन जेजे एकेडमी के आधार स्तंभ रहे ऐसे कैप्टन रघुवीर सिंह जडेजा सर भी शामिल है, जिनके आधार स्तंभ होने के कारण सतत और हर हमेश एक नेतृत्व और अपना इनपुट इन ए कंस्ट्रक्टिव एंड पॉजिटिव मैनर देने की खूबी के कारण ही हम अपने आगे का सफर प्रयाण तय कर पाएंगे। अभी वक्त आ गया है कि हम बात करें उस स्पर्धा की और उसके परिणामों की। पर जब भी कोई स्पर्धा होती है तो वो किसी परिधि के अंदर होती है, उसके कुछ नियम होते हैं। जो हमने आपके साथ शैक्षणिक संस्थानों के साथ इस प्रतियोगिता के नियमों का एक पीडीएफ शेयर किया था, लगभग उससे अनुरूप ही महद अंश पर विद्यार्थियों ने अपने वीडियोस हमें भेजे थे। फिर भी हमारी टेक्निकल टीम, हमारी जजिंग टीम और हमारी क्रिएटिव टीम ने जो कुछ सुझाव दिए हैं वो आप तक, विद्यार्थियों तक मैं यहाँ पे रखना चाहूँगा। एक कि जो बताया गया था उस पीडीएफ में, अपने वीडियो को लैंडस्केप मोड में शूट करें। दूसरा, जब आप कोई वक्तृत्व स्पर्धा का हिस्सा होते हैं तब आप कैसे खड़े होते हैं, क्या कपड़े पहनते हैं, क्या पहनावा पहनते हैं। इच्छनीय तो ये था कि आप अपनी स्कूल कॉलेज की वर्दी धारण करें, वो भी देखा जाता है। आपके हाव भाव, आपके बोलने का ढंग, ये भी देखा जाएगा।
किस तरीके से आप अपने विचार प्रकट करते हैं, शुरुआत करते हैं, अपने पॉइंट्स देते हैं और बाद में इन सब का संक्षिप्त में एक कंक्लूजन करते हैं, ये सारी चीजें देखी गई थी। इसमें कई विद्यार्थियों को सुधार करने की जरूरत है। तीनों श्रेणियों के सभी पार्टिसिपेंट्स के वीडियोस हमारे YouTube चैनल कैप्टन जेजे एकेडमी पर अपलोडेड है। आप सभी इसको देखिएगा और स्वयं अपना मूल्यांकन करिएगा। एक और बात जो हमारे सामने हमारी नजर में आई वो ये थी कि हर कोई पब्लिक स्पीकिंग में महारत हासिल करने के लिए कितना तैयार है। उसकी जो सीढ़ी है, कोई ऊपर की पायदान पे है, कोई नीचे की पायदान में है और कोई एकदम शुरुआत कर रहा है। तो आपकी इस प्रगति में मदद होने के लिए जैसे हमने पहले प्रॉमिस किया था, वैसे पब्लिक स्पीकिंग में महारत कैसे हासिल करें, इसका एक वीडियो मेरे द्वारा आप लोगों के अपने वीडियोस अपलोड करने के 2-1 दिन पहले हमने अपलोड किया है। वो अभी भी हमारे YouTube चैनल पर है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम उसकी लिंक दे रहे हैं, आप ये जरूर देखिएगा। और आने वाले दिनों में भी यह प्रतियोगिता या कोई और प्रतियोगिता में ये वीडियो और इसमें दिए गए पब्लिक स्पीकिंग में महारत हासिल करने के कुछ मंत्र उससे जरूर सीखिएगा। अब और कोई बीच में बात ना करते हुए सीधे विद्यार्थियों की, स्पर्धकों की उत्सुकता का अंत करते हैं। यह करने से पहले मैं एक क्षमा प्रार्थना करना चाहता हूं। बड़े ही उत्साह से कई विद्यार्थियों ने हमें अपने वीडियोस भेजे थे। किन्हीं टेक्निकल कारणों के बदौलत हम 2 या 3 विद्यार्थियों के वीडियोस अपलोड नहीं कर पाए हैं। उनमें से एक है कक्षा 7 में अभ्यास करने वाले खुशविंदर सिंह वर्मा, जो कि मोदी स्कूल के विद्यार्थी हैं, और कक्षा 8 के विद्यार्थी 8 मोदी स्कूल में अभ्यास करने वाले श्याम वाधवान। हम आपका वीडियोस किन्हीं कारणों से अपलोड नहीं कर पाए हैं। आने वाले दिनों में हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हमारे YouTube चैनल पे हम आपका वीडियो जरूर अपलोड कर देंगे। परिणाम 3 श्रेणी में प्रतियोगिता थी, तो परिणाम भी 3 श्रेणी में आएंगे। और मैं ये आपको बता दूं, हमारी टेक्निकल टीम, हमारे जजेस की टीम और हमारे ट्रेनर्स की टीम का आपने इस बरसात के ठंडे माहौल में भी पसीना निकाल दिया था। इतने सारी एंट्रीज और हर एंट्री दूसरी एंट्री से किसी न किसी बात में अच्छी, पर जो हमने आपसे PDF शेयर की थी और जिसके आधार पे हमने अपना निर्णय सुनाया है वो 4 स्तंभों पर थी। पहला कंटेंट, दूसरा एक्सप्रेशन एंड डिलीवरी, आप अपने आप को कैसे व्यक्त करते हैं वो, तीसरा प्रोनाउंसिएशन एंड फ्लो, आपके उच्चारण और आपका प्रवाह, और अंत में जो मैसेज आप समाज को दे रहे हैं, योर मैसेज टू द सोसाइटी। इन 4 स्तंभों पर हमारी जजेस टीम ने बड़े ही जद्दोजहद के बाद, बड़े ही अंदर ब्रेनस्टॉर्मिंग और हीटेड आर्ग्यूमेंट्स के बाद इन परिणामों तक पहुंचे हैं। 3 श्रेणियों में प्रतियोगिता। हमने ये सोचा था कि 3 भाषा में की गई यह प्रतियोगिता, जिसके विषय राष्ट्र गौरव को बढ़ाने वाले, भारत को आत्मनिर्भर बनाने का एक्शन प्लान देने वाले, कैसे हम स्वदेशी को अंगीकार कर सकते हैं वो, और कैसे हम भारत को विश्वगुरु बना सके, ऐसे 3 अलग अलग विषय तीनों श्रेणियों के लिए और तीनों भाषाओं में, हिंदी, गुजराती, अंग्रेजी में। हमारा पहले यह सोच विचार था कि हर श्रेणी में तीनों भाषाओं को शामिल करते हुए हम क्रमांक 1, 2 और 3, रैंक 1, 2 और 3 देंगे। पर जिस तरीके का आप सबका पार्टिसिपेशन था, ये देखते हुए बहुत ही जल्द हमारी टीम इस निर्णय पे आ गई कि 3 नहीं 5-5 प्राइजेस होंगे हर कैटेगरी में। हमने और वीडियोस देखे तो हमें लगा कि और अच्छी पार्टिसिपेशन है, और 19-20 नहीं, 19.5, 19.25, 19.5, 20 ऐसी टाइट कंपटीशन है। तो ये देखते हुए एक और बात पे हम आए कि हर श्रेणी में हम 5 कंसोलेशन प्राइज भी देंगे। पर कंसोलेशन शब्द से हमें थोड़ी दिक्कत है। कंसोलेशन शब्द है मतलब कि हम आपको कंसोल कर रहे हैं बेटा कि आप इनाम नहीं जीत पाए हो,
मैं कंसोल कर रहा हूं आपको, मैं सांत्वना दे रहा हूं आपको कि भले इस बार आप नहीं जीते, अगली बार जीत जाओगे। नहीं, ऐसा नहीं है। राष्ट्रभक्ति में, पैट्रियोटिज्म में कोई 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर नहीं हो सकता। हम सभी 1 नंबर है। और जैसे हर विद्यार्थियों के वीडियोस हमें मिले हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कुछ ना कुछ अच्छी बात उन्होंने जरूर की है। तो ये क्लीशे नहीं है। इट्स नॉट एन क्लीशे वेयर वी से दैट एवरी वन ऑफ यू इज अ विनर, और किसी को जीतने के लिए किसी को तो हारना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। सच मायने में आप सब हमारे लिए विजेता हैं। पर कंसोलेशन शब्द को ना इस्तेमाल करते हुए हमने एक नया वर्ड कॉइन किया, एक नए इनाम का नाम लिया, और वो था अ बैज ऑफ रिकॉग्निशन। हम आपको रिकॉग्नाइज करते हैं, आपके अंदर छुपे हुनर को देखते हैं और उसको और उजागर करते हुए आपको रिकॉग्नाइज करते हैं। तो अभी कंसोलेशन प्राइज जो पहले थी ही नहीं होंगी, नाम उसका कंसोलेशन प्राइज नहीं होगा, उसका नाम होगा अ बैज ऑफ रिकॉग्निशन। स्थितियां और आगे बढ़ती हैं और अच्छी चीजें आती है, तो एक और कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं स्पेशल मेंशन, विशेष तौर पे जिनका उल्लेख किया जाए। तो स्पेशल मेंशन में भी कुछ एंट्रीज हैं। तीनों कैटेगरीज में आप देखेंगे कि कुछ रैंक्स में आपको टाई हुआ है ऐसा दिखेगा, और 5 से भी ज्यादा कहीं ना कहीं बैज ऑफ रिकॉग्निशन भी दिखेंगे और स्पेशल मेंशन भी दिखेंगे। सो वंस अगेन, इन एवरी ट्रू वर्ड एंड सेंस ऑफ द एक्सप्रेशन, ऑल ऑफ यू आर विनर, और आप सबके अंदर के विजेता को, राष्ट्रीय युवक युवती को निखारने का काम हमारा है। अगर वो नहीं हो पाया है तो हम कैप्टन जे एकेडमी इसके लिए कटिबद्ध है कि आप सबकी स्कूलों कॉलेजों में आकर ट्रेनिंग प्रोग्राम करा के, आपको हमारी एकेडमी में बुला के, हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से हम आपकी प्रतिभा को निखारने का काम हमेशा जारी रखेंगे। परिणाम की शीट मैं भी अपने हाथ में लेता हूं, दिल थाम के बैठिएगा। सबसे पहले हम जो परिणाम देखेंगे वो परिणाम होने वाला है ऑफ द कॉलेज कैटेगरी, महाविद्यालयन कैटेगरी का। नंबर 3 से शुरुआत करते हैं। नंबर 3 पे, या फिर स्पेशल मेंशन से पहले शुरुआत कर दे, चलिए मैंने बोल दिया, पहले तो नंबर 3 से ही शुरुआत करते हैं। नंबर 3 पर आई है अवनी थानकी, कामदार नर्सिंग कॉलेज की विद्यार्थिनी, कामदार नर्सिंग कॉलेज की यह विद्यार्थिनी अवनी थानकी तीसरे रैंक पे। दूसरे रैंक पे वी हैव अ टाई। दूसरे रैंक पे 2 प्रतिस्पर्धी है, एक रुचिता राठौड़ जो कि मारवाड़ी यूनिवर्सिटी की विद्यार्थिनी है, और उनके साथ अंजलि सिंह जो कि द महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी बड़ौदा की विद्यार्थिनी है। ये दोनों दूसरी पायदान पर एक साथ है। और महाविद्यालयन श्रेणी की विजेता नंबर 1 रैंकर है अदिति सिंह, मारवाड़ी यूनिवर्सिटी राजकोट। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक स्पेशल मेंशन है, एक स्पेशल मेंशन ऐसे एक व्यक्ति के लिए है जो अपने जोश, अपनी बोलने की शैली और उससे भी ज्यादा आज के न्यू नॉर्मल में, डिजिटल युग में, साइबर युग में बड़े ही आगे हैं, और वो है कामदार नर्सिंग कॉलेज के ही जयदीप मेहता। आपका बोलने का तरीका, आपका सोशल मीडिया के ऊपर पॉपुलैरिटी, इसको ध्यान में रखते हुए, आपके वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए हम आपको एक स्पेशल मेंशन देते हैं। आइए बढ़ते हैं अभी अगली कैटेगरी पर। दूसरी कैटेगरी कॉलेज कैटेगरी से, जिसमें थोड़े से कम नाम आए थे, पर प्रतिस्पर्धा जो थी वो उससे भी तीखी थी, तेज थी। ऐसी दूसरी कैटेगरी स्टैंडर्ड 9 to 12, कक्षा 9 से 12। कक्षा 9 से 12 में बड़ी सारी एंट्रीज आई, और उसके कारण बड़े सारे जगह पे टाई भी आपको दिखेगा। पर उससे पहले एक स्पेशल मेंशन, फिर से एक क्षमा प्रार्थना भी। महक पटेल, आपका नाम हम आपके वीडियो के ऊपर गलती से कोई और नाम आ गया था। कैप्टन जे एकेडमी के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बड़े ही एक्टिव है, हम तुरंत रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे ही आपकी तरफ से इनपुट आया, आपके नाम को अभी वीडियो के ऊपर जो कि गलत नाम लिखा गया था उसको ब्लर कर दिया गया है,
कम से कम अभी गलत नाम के साथ आपका वीडियो नहीं है। स्पेशल मेंशन जिन्होंने काफी अच्छा बोला है, ऋषि कापड़ी और ईशा खारचलिया, आपके लिए स्पेशल मेंशन। अब बढ़ते हैं बैज ऑफ रिकॉग्निशन स्टैंडर्ड 9 to 12 में। बैज ऑफ रिकॉग्निशन नीचे से शुरुआत करते हुए सौमिल गोंडलिया पंचशील स्कूल, पलक मोलिया जय इंटरनेशनल स्कूल, उसी पायदान पर टाई में दिशिता वोरा मोदी स्कूल्स, फिर से एक बार 8वीं पायदान पर भी टाई केशवी पंडित आदर्श स्कूल्स धोराजी और नंदिनी गणात्रा मोदी स्कूल्स राजकोट। इससे और आगे बढ़ते हुए मानसी मेहता मोदी स्कूल, दिया गोवाणी आदर्श स्कूल्स धोराजी, ईशा आप यहां पे भी हैं इन बैच ऑफ रिकॉग्निशन, ईशा खारचलिया मोदी स्कूल और ध्वनि कंसारा मोदी स्कूल, आप सब हैं बैच ऑफ रिकॉग्निशन के विजेता। अब आते हैं रैंकर्स के ऊपर। 5वीं पायदान पर स्टैंडर्ड 9 to 12 में है 5वीं पायदान पर निलय व्यास जीनियस इंग्लिश मीडियम स्कूल। निलय आपने बहुत अच्छा बोला, पर जैसे हमने कहा वैसे यह एक वक्तृत्व स्पर्धा है। आप कैसे बैठते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपका कैमरा एंगल भी इस नए डिजिटल नॉर्मल में कैसा है, आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं, यह भी उतना ही मायने रखता है जितना आपका कंटेंट। इसके ऊपर अगर आप सुधार करेंगे तो आप में बड़ा ही टैलेंट है, आप और आगे जाएंगे, इसके लिए मैं आपको आश्वस्त करता हूं। 4थी पायदान पर है श्रेया पोपट। श्रेया आपने बड़े अच्छे कंपोजर के साथ बोला, पर थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज, थोड़ा सा एक्सप्रेशन, थोड़ा सा एग्रेशन, थोड़ी सी भावनात्मक तरीके से अगर आप अपनी ऑडियंस से जुड़ने का प्रयास करेंगी तो बड़ा अच्छा होगा। श्रेया पोपट मोदी स्कूल 4th रैंक। तीसरे रैंक पे जो विद्यार्थिनी आई है, हो सकता है आप इससे नीचे भी आपका रैंक आ सकता था, हो सकता है इससे ऊपर भी आपका रैंक आ सकता था, पर यह मैं आपको श्योरिटी के साथ कहता हूं कि अगर ये कोई रिसर्च पेपर प्रेजेंटेशन होता या कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन होता तो आप हैंड्स डाउन आउटराइट विनर होती। हिरल टोलिया रैंक 3। हिरल टोलिया के वीडियो में हम देखते हैं कि बड़ा ही अच्छा ग्राफिकली असिस्टेड वीडियो, जब वो कुछ बोलती हैं इंडियन आर्म फोर्सेस के बारे, आर्मी नेवी एयरफोर्स के बारे में, तो वो उसके फोटोग्राफ्स उनके साइड के एक ब्लैंक जगह पे आते हैं। वो फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करती हैं। कोई भी वक्तव्य हो, वक्तृत्व हो, आपके द्वारा बोली गई हुई चीज को एक अच्छी तरीके से एबली बैक करना चाहिए स्टैटिस्टिक्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स से। बड़े अच्छे से हिरल आपने किया। एक और बड़ी अच्छी बात, जब हिरल अपने इस स्पीच में बोलती है वी शैल मूव फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, इतना अच्छा एडिटिंग कि जब वो बोलती है फ्रॉम डार्कनेस, वीडियो में पूरा पिच डार्क अंधेरा होता है, हाथ में मोमबत्ती लेते हुए हिरल आगे आती है और जब वो बोलती है फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, लाइट के बोलते ही वो मोमबत्ती का प्रकाश उनके चेहरे पर, पूरे वीडियो में प्रकाश। इतना अच्छा इनोवेटिव कॉन्सेप्ट, वेरी वेल डन। बट हिरल यू हैव अ लॉट ऑफ रूम स्टिल टू इंप्रूव। यू आर ऑन रैंक 3। रैंक 2 पे एक ही एंट्री मात्र पतंजलि स्कूल की और एक विजेता। बड़ा ही अच्छा हिट रेशियो, जैसे आर्मी में बोलते हैं एक गोली एक दुश्मन, वैसे एकमात्र एंट्री पतंजलि स्कूल की और रैंकर नंबर 2 पे उन्नति चावड़ा। जनरली ये कहा जाता है कि इट्स लोनली ऑन द टॉप, शीर्ष पे एकदम कम लोग पहुंचते हैं, पर हमारे पास 2 एवरेस्ट विजेता है। देयर इज अ टाई ऑन नंबर 1 ऑल्सो, और ये नंबर 1 की जो टाई है वो जो शेयर कर रहे हैं, एक है, एनी गेसेस? मे बी यू हैव गेस्ड इट राइट फॉर बोथ ऑफ देम, क्योंकि दोनों इतने अच्छे हैं। चिंदश्री सुरानी फ्रॉम मोदी स्कूल एंड मे बी एन आउटराइट विनर, अ ग्रेट ऑरेटर इन द मेकिंग, रिधम बाबरिया आदर्श स्कूल धोराजी। Congratulations to all of you. Moving on to the last category. ये कैटेगरी लास्ट जरूर थी, पर इसी ने हमारा दम निकाल दिया। इतनी सारी एंट्रीज के हम हैंडल नहीं कर पाए, इतना सारा क्रिएटिविटी, इतनी सारी इनोवेटिवनेस, कुछ ऐसी बातें जो अकल्पनीय थी। कोई अपने वीडियो में गाना गा रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई गार्लैंड के साथ
भारत का नक्शा बना रहा है, फूलों के साथ भारत का नक्शा बना रहा है। कैटेगरी 5 to 8, 5 से 8 कक्षा की इस कैटेगरी के स्पेशल मेंशन जिन प्रतिस्पर्धियों के हैं वो है यशस्वी आसोडरिया। यशस्वी ने बड़े अच्छे से अपने टेरेस के ऊपर फूलों से भारत का एक मानचित्र, एक मैप बनाया, बीच में भारत भी लिखा, अपने आप को भी तिरंगे में सजाया और खुद और मैं भी उनके छोटे भाई युग, अपने भाई युग को साथ में लेते हुए ऐसा ही एक बड़ा ही जोश वाला इलोक्यूशन का वीडियो हमें भेजा। स्पेशल मेंशन टू यू यशस्वी एंड युग ऑल्सो। सन्मति जैन, कितना अच्छा है जब पिता कुछ कहें और बालक उसको फॉलो करे, अच्छी दिशा में चिंतन करे और बालक उस जगह जा सके। यह प्रेरणा जरूरी है। इस प्रेरणा के लिए उन माता पिताओं का वंदन भी जरूरी है। सन्मति ने अपने इलोक्यूशन वीडियो के अंदर जो पोयम रिसाइट की है वो पोयम उनके पिताजी ने लिखी थी। हैट्स ऑफ टू यू सर ऑल्सो एंड वी कैन श्योरली से सन्मति आपके हाथों से कार्व आउट होकर एक बड़ी ही प्राउड नेशनलिस्ट इंडियन बनेगी, ये हमें श्योर है। एक यहां पे स्पेशल मेंशन ट्विशा जोशी के लिए भी। ट्विशा, आप सो इनोसेंट येट सो यूथफुल एंड येट सो वेरी वेरी स्वीट। योर वीडियो वाज सो वेरी ग्रेट, बहुत अच्छा था, बट देयर इज अ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट ट्विशा, वर्क ऑन टू इट। बट आपकी इनोसेंस और आपकी स्वीटनेस ने हमारी आई को कैच किया है, हम इससे दूर नहीं रह पाए। सो दस अ स्पेशल मेंशन टू यू ट्विशा जोशी। इस कैटेगरी में जो बैज ऑफ रिकॉग्निशन विनर्स हैं उनके तरफ बढ़ते हैं, नीचे से शुरू करते हुए। द बैज ऑफ रिकॉग्निशन विनर्स, प्रेक्षा सिंगाड़ा, मोदी स्कूल। दर्श संघवी, स्टैंडर्ड 5, मोदी स्कूल। भक्ति वसाणी, स्टैंडर्ड 5, मोदी स्कूल। प्रिशा सिद्धपरा, स्टैंडर्ड 7, CKG प्राइमरी स्कूल। एंड निशिता सुखंडी, स्टैंडर्ड 6, दी पंचशील स्कूल। इस कैटेगरी में, इस हमारी आखिरी कैटेगरी में लास्ट सेट ऑफ रैंकर्स में जाने से पहले मैं एक और बात कहना चाहूंगा। हमारे प्रतिस्पर्धियों में एक प्रतिस्पर्धी थे दक्ष व्यास, जेतपुर एकेडमी के विद्यार्थी। क्योंकि दक्ष व्यास के पिताजी, जो खुद ही इन हिज ओन राइट्स इज so very well connected with the education sector, is an educationalist and is also one of the trustees of the Captain JJ Foundation, हिरेन व्यास जी, उनके सुपुत्र है दक्ष। और यह हमारे एकेडमी, हमारी फाउंडेशन में निश्चित है कि ऐसी कोई स्पर्धा में हमसे कनेक्टेड कोई भी व्यक्ति, परिचित, मित्र या रिश्तेदार को हम स्पर्धा में रैंकिंग में शामिल नहीं करेंगे। नहीं तो एक बैज ऑफ रिकॉग्निशन के विनर दक्ष आप थे, उसके लिए कांग्रेचुलेशन। पर इस पारदर्शिता को और फेवरिटिज्म को दूर रखने के हेतु आपका यहां पे कंसिडरेशन नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं। द रैंक विनर्स ऑफ द 5th to 8th स्टैंडर्ड कैटेगरी। 5वीं पायदान पर द 5th रैंक विनर इज प्रयागराज पटेल, स्टैंडर्ड 6, मोदी स्कूल। स्टैंडर्ड 4, प्रियांशी मखानी, स्टैंडर्ड 7, द मोदी स्कूल। On number 3 we have Leah Manwar, standard 8, Podar International School. Number 2 पे है a very good orator, very nicely rendered speech and very high notch on your expressions. It is Mahi Rukhani, standard 7, MV Dulesia Schools. Mahi, you can scale 1 rank up. ऑल द बेस्ट टू यू। और इस कैटेगरी की सबसे टाइटली कंटेस्टेड इस कैटेगरी के फर्स्ट रैंक होल्डर, द फर्स्ट प्राइज विनर, हियर वी हैव ट्विशा जोगिया, स्टैंडर्ड 8, द पंचशील स्कूल। तो ये थे इस प्रतियोगिता के
कैप्टन जे एकेडमी के द्वारा आयोजित संभवतः भारत की पहली ऑनलाइन इलोक्यूशन कंपटीशन, इंडिपेंडेंस इलोक्यूशन कंपटीशन के विनर्स, बैच ऑफ रिकॉग्निशन विनर्स और स्पेशल मेंशन पार्टिसिपेंट्स के नाम आप सभी को और सभी पार्टिसिपेंट्स को ना भूलते हुए हर एक पार्टिसिपेंट और उनके फैमिली मेंबर्स, उनके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सिबलिंग्स, उनके टीचर्स, स्कूल मैनेजमेंट को अ बिग थैंक यू एंड अ बिग कांग्रेचुलेशंस। अभी हम इस कार्यक्रम को 15 अगस्त के सेलिब्रेशन और रिजल्ट अनाउंसमेंट प्रोग्राम को यहां पर समाप्त करते हैं। आशा रखता हूं कि आप सब कैप्टन जे एकेडमी के इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप से जुड़े रहेंगे एंड मे बी विथ योर सपोर्ट हम ऐसे लीडर्स भारत में बना पाएंगे जो भारत को एक उन्नत शिखर पर प्रस्थापित करेंगे। फिर से किसी न किसी राष्ट्रीयता को स्पर्शते विषय के लिए जुड़ने के वादा करते हुए आपसे अभी विदा लेते हैं। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।